Hello students. So today we will start our third chapter, that is matrices. Matrix is an important tool in simplifying our work to a great extent in dealing the problems in solving linear equations, electronic spreadsheet programs, business studies. It also helps in solving the problems in genetics, economics, sociology and psychology. Okay. Take an example of simple linear equation. Suppose we have three boys, Ram, Shyam and मोहन. राम जो है सपोज करते हैं कि हमारे पास तीन बच्चे हैं, राम है, श्याम है और मोहन है. और हम एग्जाम्पल लेते हैं कि राम जो है वो चेयर और टेबल लेगा. सिमिलरली वैसे ही श्याम भी चेयर और टेबल लेगा और मोहन जो है वो भी चेयर और टेबल लेगा. सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, राम अगर दो चेयर लेता है और तीन टेबल्स लेता है, श्याम जो है वो तीन चेयर्स लेता है और टू टेबल्स लेता है. सिमिलरली ये 5 चेयर्स और 5 ही टेबल्स लेता है. अगर हमें इफ वी नीड टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन मैट्रिसेस तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 2 3 2 5 5. इट मीन्स दैट जो भी फर्स्ट कैंडिडेट होगा उसका 2 चेयर्स होंगी, 3 टेबल होगा, 3 चेयर होंगी, 2 टेबल होंगे, 5 चेयर्स होंगी, 5 टेबल्स होंगी एंड सो ऑन. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. और जब भी हमने किसी मैट्रिक्स का नाम डालना है वो कैपिटल लेटर से डालना है. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ईच दिस एंट्री 2 3 3 2 5 5 and so on, all these numbers are called elements who are all entries of matrix. Now after that, next is a definition of matrix. Now definition, a matrix is an ordered rectangular arrangement of numbers or functions. मैंने तो आपने स्पेशली यूज किया दो वर्ड्स, नंबर्स एंड फंक्शंस. नंबर्स के लिए तो आपने देख लिया, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था आपको चेयर एंड टेबल्स के लिए, तो वो नंबर्स में ही आएगा. बट समटाइम्स हमें कुछ ऐसे भी हमारे मैट्रिसेस आएंगे जिसमें हमें फंक्शन यूज करने हैं. सपोज हमारा जो फंक्शन है वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, वो लॉगरिथम फंक्शन है, सो ऑन. तो दैट्स व्हाई मैट्रिक्स क्या है, आपका कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. देख लीजिए जैसे आपने वहां पे लिया हुआ था एग्जांपल, सपोज मैं कोई और एग्जांपल ले रहा हूं, 3 2 2 3 5 and 5. सो दिस इज अ रेक्टेंगल. देख लीजिए जहां पे कितनी these horizontal lines, these horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns. So if we look at here, हमारे this is second row and 5 5, this is your third row. Similarly, the vertical lines, these vertical lines are called first column and this is your second column. So we can say that this row, this matrix has how many rows? It has 3 rows and how many columns? 2 columns. So you can write, suppose this matrix 3 2 2 3 5 5. So we can say that this matrix has a 3 rows and 2 columns. So we can write 3 rows and 2 columns. This is called the order of a matrix. And it is important to note that whenever we have to write the order of a matrix, first of all we have to write the rows and after that we have to write the columns. And if we multiply 3 into 2 means 6. There are 6 elements or entries in a matrix. After that, now we will learn about the order of a matrix. So in general, the definition of a
order are. Suppose let us take an example of a general matrix A, which is equal to, suppose the elements are entries of a matrix are A11, A11, A12, A13, A14, so on to A1n. After that, in the second row, we have elements are A21, A22, A23, A24, so on to A2n. After that, similarly, in the third, 31, 32, 33, and so on. Similarly, after that, in the last row are AM1, AM2, AM3, AM4, and so on to AM1. After that, we find that, suppose in this general matrix, we have in total m number of rows and n number of columns. So this is the, we can say that the order is m into n. If we have to represent this whole general form in a simple notation of a matrix, so general notation of matrix is capital A equal to Aij m into n. Here Aij indicates the position of elements, and this m into n, it represents the order. Now again take an example. Suppose we have a matrix 3, 2, 4, 5, 7 and 8. Suppose if we have to find what is the position of this 4. The position of 4 is, listen, the position of 4 is its row, in which row it exists. ये एग्जिस्ट कर रहा है कौन सी रो में? सेकंड रो में. एंड कौन से वाले कॉलम पे है? फर्स्ट कॉलम पे. तो वी कैन से दैट द पोजीशन ऑफ 4 इज ए, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. ऐसा कि बताइए 2 2 वाला एलिमेंट कौन सा है? 2 2 मींस सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम. सो दैट एलिमेंट इज 5. अगर आपको कोई बोलता है कि बताइए सेकंड रो और थर्ड कॉलम क्या है, देखिए सेकंड रो कहां पे है, सॉरी, अगर आपको कोई बोलता है कि थर्ड रो और फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो देखिए थर्ड रो कौन सी आपकी, दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो, और जी आपकी आ गई थर्ड रो. और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट आएगा, देखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, द एलिमेंट इज 7. So by this general notation of the elements, आप जो है कोई भी क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि what is एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट. इसे अगर हमें जो है जनरल दे दिया हो, लोकेशन जो दिया हो, इनका अगर आपको कोई रिलेशनशिप दिया हो, तो हम कोई भी मैट्रिक्स को भी फॉर्म कर सकते हैं. लेट अस टेक दिस एग्जांपल. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल by using the location of the matrix. How we can construct the matrices? Suppose an example is construct a 3 by 2 matrix whose elements are given by the relation Aij equal to I plus j. Suppose now हमें सबसे पहले क्या करना है, सपोज ए लेने मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है 3 into 2. ऑर्डर क्या दिया हुआ आपको 3 into 2. It means that it has 3 rows and 2 कॉलम्स. इसमें कितनी रोज है आपकी? 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है. इसका हम जनरल लिखेंगे. पहले देखिएगा A11, A12, A21, A31, A22, A. So its order is 3 into 2 means देखिए 3 rows, first row, second row and third row. Clear? Similarly 2 columns. This is your first column and this is your second column. अब हमें क्या करना है, by using the location of the elements, हम इससे हम क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स को बना सकते हैं. अब देखिए हमारा जो भी इनके जो रो है कॉलम का जो भी इक्वेशन है, देखिए i plus j दिया हुआ, हम क्या करेंगे हर एक एलिमेंट को निकालेंगे. तो
हम क्या करेंगे, यहां पे मैं आंसर लिख लूंगा, जहां पे मैं क्या करूंगा A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, A22 की वैल्यू, A31 की वैल्यू, A32 की वैल्यू, हम इन सब की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब देखेंगे आई और जे का मतलब क्या था, जहां पे लोकेशन को बता रहे थे, आई प्लस जे जो है वो हमारा रिलेशन है, तो जहां पे आई की वैल्यू क्या होगी 1, सिमिलरली जे की वैल्यू भी 1 होगी। सिमिलरली जहां पे आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है जहां पे 2, सिमिलरली आप जब जहां पे आएंगे तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी है 2, तो जे की वैल्यू कितनी है आपकी 1, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2 ही है। सिमिलरली जहां पे आएंगे आप आई की वैल्यू भी 3 और जे की वैल्यू 1, और जहां पे आप देखोगे आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 2। अब इनको फाइंड करेंगे, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 4 and 1 5। जो भी इनकी लोकेशन है, जो भी इनकी पोजीशन है, हम वहां पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और हम जो भी हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हम उसको फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे जहां पे बच्चे ध्यान से देखिए A11 दिस इज, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 2 आ गया। सिमिलरली जो सेकंड आपका एलिमेंट है वो है 1 2, इसके एलिमेंट की वैल्यू क्या है जी, इसकी लोकेशन आ गई। थर्ड 2 1 की लोकेशन जो थी वो क्या थी 3, तो आप यहां पे क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। सिमिलरली आप 2 2 वाली देखेंगे तो उसकी लोकेशन क्या है, उसकी 4 है पोजीशन। 3 1 की जो एलिमेंट है वहां पे क्या आएगा 4, एंड सिमिलरली जो 3 2 है उसका क्या आएगा 5। सो इट मीन्स दैट अगर कभी भी जो भी हमारी लोकेशन वाले जो कोफिशिएंट्स हैं अगर हमें ये दिए हो तो हम इससे क्या इजीली जो है कोई भी मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 है उसमें वेरियस एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप उनको ट्राई करिए और प्लीज उनको निकालने की कोशिश करिए। अगर आप कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या कोई मैसेज भी कर सकते हो।